am back again. I am Dr. Shifali Gupta, motivational and public speaker. First of all, I am an educationist. I take these kind of sessions all over the world. First of all, I would like to thank Dr. Harish Rawat for giving me this wonderful opportunity to interact with you all. A very warm welcome to my session, and as we all know that today's topic is suicide prevention and awareness. We all know that Suicide Prevention Day is being observed on 10th of September, and it was started on in 2003. Now, before moving on, we must understand that suicide is one of the three major cause of death all over world for youth. One death every 40 seconds. One attempt every 3 seconds. Series of emotional negative emotions, thoughts lead to this result. Now, what are those causes? You know, it can be n number of causes for this. It is divorce, love affairs, आजकल youth में तो बहुत common है. Then extramarital affairs, illegitimate pregnancy, inability to get married, and nowadays in coronavirus time, in COVID-19 time, we have three kind of fears. That is fear of illness, fear of uncertainty, and fear of death. So all these three fears also leads us to this. Now, I must tell you that to deal with this mental illness and suicidal thoughts, we require a psychiatrist, psychologist, or counselors. Anyone can approach them. They are there to help you out. I will tell you a few incidents which tells us ki how we lead to these situations. First of all, I will like to highlight the legal issue in this. The legal issue is number 1, IPC 309. It says and it criminalizes the attempt of suicide. Then number 2 is IPC 306. That also everyone must understand. You know, the 306 says the abetment of suicide means प्रेरक. कोई आपको प्रेरक है जो ऐसे करता है तो वो भी प्रेरक आपको उत्तेजित करता है इस चीज के लिए. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यू आर ऑल्सो बीइंग अंडर द बार्स आफ्टर डूइंग दिस. सो देर आर टू मेन IPC 309 and IPC 306. एवरी यूथ मस्ट गूगल इट. सी आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से हमारे जस्टिस के तरीके हैं. आई विल लेट यू नो 2-3 more incidents regarding this where the justice has been given on these two IPCs. Number 1 is there was a love affair between two, and they said कि हम कोई मैरिज नहीं हो पा रही थी उनकी. so they said अब हम जी कर क्या करेंगे, साथ में मर ही लेते हैं. उन्होंने प्लान बनाया, एक ने दूसरे को मारा एंड खुद मारा, लेकिन वो बच गया. तो इट वॉज अटेम्प्ट ऑफ मर्डर. ही इज स्टिल बिहाइंड द जेल. आई विल नॉट नेम देम. ओके. देन नेक्स्ट इज अगर आप कभी ऐसा होता है, आजकल यूथ है, लव अफेयर्स आर वेरी कॉमन, इन्फेचुएशंस होती हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, या हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं कभी कि अरे उसने तो हमें नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, ये है. तो घबराने की बात नहीं है. नंबर 1, अगर कोई आपको धमकी देता है कि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा या सुसाइड कर लूँगी, आपने 2 चीज़ें करनी है. नंबर 1, लॉज एन FIR. नंबर 2, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. एंड इसमें आपको अपने इंडियन जस्टिस सिस्टम पर, हमारी जुडिशरी पर, पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा कि इस चीज़ को डील हम कैसे करेंगे. बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं इसमें. आपको घबराने की, डरने की, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप मैरिज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अप्रोच देम. देयर आर सो मेनी प्रोविजंस आर गिविंग इन आवर जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Go through with it. There are some which are very obvious, as I told you, IPC 309 and IPC 306. Yes, there are some changes that keeps happening according to the situation going around in our India, but Indian Constitution
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ईच एंड एवरीथिंग लीगली फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो पुराने ज़माने में जब होता था, उसमें क्या होता था पुराने टाइम में कि राजा लोग, बहुत ओल्ड हिस्ट्री व्हेन आई रेड इट अबाउट इट, उसमें था जो किंग लोग थे वो जो सुसाइड जो करेगा और अगर वो बच गया तो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड के केस में उनको रिगरस पनिशमेंट दी जाती थी. नंबर 2, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि जब सुसाइड का अटेम्प्ट हुआ, ही इज़ नो मोर, देन उनके पूरे परिवार को पनिश किया जाता था कि आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाए अपने परिवार के मेंबर का, उनसे बात करना था, उनको फ्रेंडली बनाना था. सो अभी इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे आपसे और बातें करूँगी. आप बस एक चीज़ याद रखिए, रिमेंबर इफ़ यू किल योर सेल्फ यू आर ऑल्सो किलिंग द पीपल हु लव यू. आप अकेले ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप उनको भी साथ में ले जा रहे हैं. उनकी बॉडी नीचे रहेगी क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. समटाइम्स लाइफ पुशेस अस टू आवर लिमिट्स, इट टेस्ट्स अस बियॉन्ड आवर एंड्योरेंस. Keep an eye on this because God only gives his toughest battles to his strongest soldiers. Remember this. हमारी रश्मि रथी में 3 अध्याय में दिनकर जी ने हमें बताया है कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. हमारे इंडियन जितनी माइथोलॉजी है, इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए. सब में हमें हर जगह ये बताया गया है कि ये लाइफ हमें जीनी है खुलकर. बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, कभी कभी हमारी किसी से बनती नहीं है, सोसाइटी में हमें प्रॉब्लम्स आती है. डील विद इट. भगवान ने प्रॉब्लम दिया है तो सोल्यूशन तो 100% दिया है, बस हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है. जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थॉट द वर्ल्ड इज ओवर इट बिकेम अ बटरफ्लाई. आपने वही करना है. आपने ये नहीं सोचना कि आज का दिन बस हो गया, बहुत बहुत मुश्किलें आ गई हैं. आपने आगे के बारे में सोच के अपने आप को फिर से ऊपर उठाना है. कहते हैं ना, बहुत सुना हुआ है हमने, मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है. हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लेकिन संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है. Remember, you are precious for the world. Place a hand over your heart. Can you feel something? Yes, the heart beat. That's called purpose. We are alive today. And हम लोग तो कोरोना वायरस में 2020 में जीने वाले लोग हैं. कैसे नहीं हम आगे बढ़ेंगे? इतनी बड़ी चीज़ को हमने झेल लिया है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब छोटी हैं इसके सामने. You are alive for a reason. Wake up early morning with a thought that I am the best. Today is my day. Just remember, every moment has love in it. Every hour has happiness in it. If you lose it, it becomes memory. But if you love it, it becomes life. Enjoy your life. Let's understand more by recognizing the warning signs or risk factors of this. कभी हमारे साथ जो लोग रहते हैं या हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं या हमारे नेबर्स कुछ होते हैं, तो हम हमेशा उनसे बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से साइंस है, सो दैट वी कैन हेल्प देम आउट. वी आर इन अ सोसाइटी, इट्स अ बिग फैमिली. सो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं या हम अपनी भी कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो देयर आर सम सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन. आई विल जस्ट लेट यू नो. स्लीपिंग टू मच और स्लीपिंग टू लेस, राइट. देन एक्टिंग एंशियस और अपसेट होना किसी चीज़ पर, फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस आना, घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना कर देना, मेरे को नहीं जाना. सो दीज आर लाइक यू वांट टू keep yourself in the house only. Then refuses to approach to somebody for the counseling sessions also, because they say नहीं, हमें ये डिप्रेशन नहीं है, हमें एंजाइटी नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, I am natural the way I am. No, there are some signs which are hidden. If somebody is understanding you, open up yourself. कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं है. मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ thing to be ashamed of. It's a natural thing. If some circumstances that is not according to you, it comes. Let it come, but let it go also.
डोंट स्टे विद इट. देन एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, आप इरिटेटेड बहुत होते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी क्रैंकी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर. देन टॉकिंग अबाउट सीकिंग रिवेंज, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं तो ऐसे करूँगा, अपने को आप हर्ट कर रहे हो ये करके. टॉकिंग अबाउट फीलिंग होपलेसनेस, अब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब तो मैं ऐसे ही करूँगा. दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, यू शुड अवॉइड इट. देन लुकिंग फॉर अ वे टू किल देमसेल्व्स, कैसे कर सकता हूँ ये काम मैं. इन चीज़ों को हमें अगर कोई इस तरह की बातें करते हैं उस चीज़ को पहचानना है. वी हैव टू हेल्प द सोसाइटी. देन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन there are few more causes that leads to it. Number 1 is depression. Number 2 is anxiety or disorders. Number 3 is sense of hopelessness. देन सीरीज ऑफ मेडिकल इलनेस बहुत हो जाता है. तो हमें लगता है, आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, कभी उनको बहुत इलनेस हो जाती है ना, तो पुराने टाइम में दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. कुछ भी होता था वो होप नहीं छोड़ते थे कि हम ठीक नहीं होंगे. आजकल के टाइम में थोड़ा ही इलनेस हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब बस हो गया. क्यों बस हो गया? क्या कभी हमने इस चीज़ से हम बाहर नहीं आ सकते हैं? अपनी इनर मोटिवेशन से, इनर स्ट्रेंथ से, येस वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस एंड लीड द वर्ल्ड. और कुछ भी आपका ब्रोकन रिलेशनशिप होती है, ब्रोकन हार्ट्स होते हैं आजकल के यूथ को, इट इज़ वेरी कॉमन. रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, आप लीगल अपनी IPC 309 306 को आप देखिए, उसमें क्या क्या दिए हुए हैं. तो आप बचेंगे नहीं. अगर आपने कुछ किया और बच गए तब तो पुलिस पक्का ले जाएगी. ऊपर चले गए तो आपकी सराउंडिंग्स में हो गया. आप मीडिया में सब कुछ देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है. सो समटाइम्स ये न्यूज़ कवरेज भी आती हैं, वो भी आपको थोड़े बहुत इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देती हैं. लाइक टू मच ऑफ मीडिया कवरेज आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी के साथ इनजस्टिस है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी देखिए कि अगर हम वो वॉच कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जिसको शायद उन्होंने स्ट्रगल करके ये स्टेप लिया होगा, तो उससे कैसे वो बाहर आए हैं. थिंक पॉजिटिवली ऑन दोज पॉइंट्स, नॉट द ऑल दिस हसल बसल विच इज़ गोइंग ऑन. जस्ट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स. पर हमें लो फील नहीं करना है. हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो. कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो ना निराश करो मन को. हमारे कवियों ने, हमारी हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर, आप कहीं से किसी को भी किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, हर कोई हमें ऊपर उठाने की बातें करता है, ना कि नेगेटिव बातें करते हैं. अपनी आपको एक इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने की एक आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ. आजकल व्हाट्सएप में भी काफ़ी चल रहा है. वो ईगल है, अगर लाइटनिंग होती है बहुत ज़्यादा, आंधी तूफान चलते हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचाता है? He flies high above the clouds. उसको अपनी इनर स्ट्रेंथ पता है. अगर कभी वो नॉर्मल भी उड़ा होता है तो only one bird is there in the whole world who dares to sit on the top of it, and that is crow. Crow उसके ऊपर बैठकर उसकी गर्दन को टक 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 करके हर्ट करता रहता है. अभी अगर वो छोड़ देगा अपनी होप को तब वो नीचे गिरकर मर जाएगा. पर he has confidence in his inner strength. He flies so high above the cloud and above all, so that by less of oxygen, this crow falls down by himself. So अपनी inner strength को पहचानिए. आपकी क्या inner strength है? कोई भी मुश्किल आपको नीचे नहीं गिरा सकती है अगर आप self motivated हैं. There are many ways to help to your young ones or anyone who is suffering from this. Number 1 is immediate help. There are so many helplines. I will share the number at the end of my talks where you can approach to these people. I will surely share all the numbers. Yeah. So you can approach them. Our National Suicide Prevention Lifeline is also there. Then for long-term help, you can take the person to some psychiatrist, psychologist or therapist. Sometimes you need a good
टॉक थेरेपी ऑल्सो, बातें करिए खूब, बातें करने से उनके अंदर का सब निकलता जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए. वन कैन डू दिस टॉक इंडिविजुअली ऑल्सो, समटाइम्स इन अ ग्रुप ऑल्सो यू कैन डू दिस, समटाइम्स इन अ फैमिली ऑल्सो, नॉर्मल टॉक विच कैन पेप देम अप. So these kind things will help them to be more strong within inside. Now next is we have cognitive behavioral therapy. We call it CBT therapy. Now what it does? It takes care of your thoughts, feelings and emotions at the same time. All three things it takes care. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फीलिंग्स हमारी आती हैं और जाती हैं. आपने देखा होगा हर समय आप सैड नहीं हैं, हर समय आप हैप्पी नहीं हैं, हर समय आप गुस्सा भी नहीं है, राइट. तो हमारे हिंदी में भी 9 रसों को बताया गया है, 9 तरह के रस होते हैं, अलग अलग, कोई हंसने का है, कोई हास्य रस है, कोई अलग टाइप के रस है. तो इन रसों को आना जाना लगा रहता है हमारे अंदर, फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं. आप मुस्कुराते रहिए, ये तो एक खुदा ने आपको नियामत दी है मुस्कुराने की. रब देता है मुस्कुराने की वजह बार बार, आपके हाथ में है उसको ढूंढना हर बार. ध्यान रखिए, स्माइल से आप बहुत कुछ लीड कर सकते हैं. कभी होता है डिप्रेशन, यस, आप गुस्से में भी आते हैं, लो भी फील करते हैं, डोंट स्टे विद इट, जस्ट मूव ऑन. आगे मूव करना है आपको, पीछे नहीं जाना है उस चीज़ में. Then we were talking about CBT therapy. So what it does is it identifies your feelings, your negative emotions, and then it tries to erase it and treat it according to the emotions. Then we have the next therapy, which is dialectical behavior therapy. We call it DBT. This therapy is, it deals with you by teaching them healthier ways to think about how to cope up with stress, how to cope up with depression, how to cope up with the other ailments which you are having in a very different way. In a different way means it teaches you mindfulness skills. So DBT also helps you in many ways. You can ask the therapist for it. They can decide when to give. Now medicines also you can take sometimes after consulting any doctor. मुस्कुराने का मैंने आपको बताया, you have to keep smiling. That I'll keep repeating in my whole talk. हमेशा मुस्कुराते रहिए. परिस्थितियाँ भी आपको परेशान करते करते थक जाएंगी और जाते जाते मुश्किलें भी कहेंगी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को. स्पेशली आजकल के टाइम में, इन केस ऑफ यूथ, जो आजकल के बच्चे हैं, मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद परेशान हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, अगेन दे सेड हम मैरिज ही नहीं करेंगे. सो ऑल दिस काइंड ऑफ इमोशंस आर वेरी नेचुरल इन दोज. एंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दे हैव हार्ट ब्रेक, कि वो मुझे बहुत पसंद थी, उसने मेरे से मैरिज नहीं की, या वाइस वर्सा ऑल्सो इट कैन हैपन. सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट्स द नेगेटिव इमोशंस. ये आएंगे, नेचुरल है, इनसे निकल कर बाहर आना है. दैट इज आवर जॉब टू गेट इट डन. All take the help of the society, take the help of the family members also. You can do it yourself also. आराम से बैठिए, प्यार से बातें करिए उन लोगों से. बातों बातों में ही वो कुछ बोल जाते हैं जो आपको पता चल जाता है. So आप, ये ट्रिक्स हैं, these are the tricks to take out something from the people who are suffering from it. Then अगर कोई फिर भी इस चीज़ से होता है तो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन भी लेनी होती है. सबसे पहले उसको काम करना है, बिल्कुल जस्ट लेट हिम बी कूल एंड काम. कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, जस्ट से आई एम देयर फॉर यू, दैट्स इट. दे डोंट रिक्वायर एनीबडी मोर देन पेरेंट्स और सिस्टर, जस्ट आई एम देयर विद यू. जो भी आप उसको, जिसको भी डील कर रहे हैं, गिव देम दैट कॉन्फिडेंस. देन कीप आस्किंग देम. मजाक मजाक में पूछिए कि आपको लग तो नहीं रहा कि आप अपनी लाइफ ख़त्म करने वाले हैं, मजाक मजाक में, सो दैट यू विल कम टू नो कि उसके मन में क्या चल रहा है. दिस थिंग शुड कम आउट. सो देन आफ्टर दिस फोकस ऑन कंसर्न ऑफ वेल बीइंग ऑल्सो. थैंक यू अनिता. इट इज़ नाइस फ्रॉम माई साइड ऑल्सो टू मीट ऑल ऑफ यू, ऑल माई व्यूअर्स. थैंक यू किरण. Yes, we require positive thoughts to go on. Always be positive. Then where we were, yes, youth के लिए how can you handle them in this? Make them enjoy. हमने मुन्ना भाई MBBS देखी हुई है, कितने आराम से उन्होंने इस चीज़ को डील किया है.
हम सब ने देखी है MBBS। बहुत स्लोली साइकोलॉजिकल वे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डील किया था। सीखिए इन सब चीज़ों से। यस मिसेस सेठी, आपने लिखा है गर्ल्स मैरिज के बाद ससुराल वालों के साथ देखिए, this thing has to be actually understood by the parents also, by the in-laws also, right? आपके घर में कोई नई बच्ची आती है, आप उसको अपने घर की तरह मानते हैं, आप अपने घर का एक मेंबर, क्या वो तो पार्ट ही हो जाते हैं आपके घर के। लेकिन क्या सेम फीलिंग्स दूसरी तरफ भी हैं? क्या सेम चीज़ दूसरी तरफ भी है? इस चीज़ को आपको डेवलप करना होता है। शुरू में तो नहीं होगा। एक बच्चा जो 21 साल तक कहीं रहा है, वो आपके पास आया है, तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आती हैं हर किसी को। दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम्स, यू नो। अगर कोई इसको आराम से हैंडल करता है, इसमें आपके परिवार वालों का बहुत साथ चाहिए होता है। थैंक यू मिस सेठी, थैंक यू। सो परिवार वालों के साथ से आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, लोग हमारे हाथ में है जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन देखना है। और सबसे पहली बात है, 2 बच्चे जो साथ में हैं उनकी कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रीड करिए, बीच में नहीं बोलिए, उनको काउंसिल करते रहिए धीरे धीरे। बिकॉज जब न्यूली वेड होते हैं तो उनको काउंसलिंग की दोनों तरफ से ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं की उन पर कर दें। सो दीज थिंग्स आर in a different way. I will talk about it in my next session, because this counseling is in a something different way. So we were talking about the suicidal thing. Now where I was there कि अगर हमें ये सब कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, recognize the signs of it, कि बच्चा या कोई भी यूथ है या कोई भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ में जा रहा है अंदर, तो उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। रियलाइज इट, टेक देम, काउंसिल देम। नहीं होता है, टेक देम टू द डॉक्टर। आस्क द यूथ कि आप, आई होप आप सब ठीक हैं। अदरवाइज उनको लगेगा कि ये तो ऐसी जस्ट नॉर्मल बात कर रहे हैं। एंड डोंट बी जजमेंटल। कभी कभी हमें खाली एक गुड लिसनर बनना होता है। मैं आगे बताऊंगी, देयर इज वन वेरी गुड एसोसिएशन हियर विच डील्स ओनली विद दिस टॉक थेरेपी। यू जस्ट गो टॉक टू देम, अनवाइंड योरसेल्फ, कम बैक होम एंड बी फील फ्रेश। सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैं बात करूंगी। सेकेंडली, अगर आपके साथ कोई पर्सन ऐसा है, जस्ट डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, यूज पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस। जो शब्द दिल से निकलते हैं वो दिल तक जाते हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों तरह के हैं। दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने शब्दों को, जब आपके वर्ड मुंह से बाहर निकलते हैं, जस्ट कीप अ चेक ऑन इट व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारी सोच में डिफरेंट होते हैं, पर वो बहुत दूसरी सोच में होते हैं। उस चीज़ को हमें पकड़ना है। Okay, now next is there is something, remove the means of self harm. अगर वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसको सुन लीजिए, लेकिन अगर वो अपने आप को कुछ हार्म करने की सोच रहे हैं तो जस्ट रिमूव दिस थॉट फ्रॉम देम। बिकॉज ये एक थॉट आज आया है, कल उससे बड़ा होगा, परसों उससे बड़ा होगा, एंड इट विल लीड टू मोर नेगेटिव थॉट्स एंड दे कैन टेक एनी स्टेप विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ देम। मैं आपको एक स्टोरी भी बताती हूँ इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिसके भी फ्रेंड हैं या आपके घर में कोई ऐसा है हु इज़ डीलिंग विद दीज इश्यूज, जस्ट टेल देम कि आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, बट आई प्रॉमिस यू दिस, दैट आई विल लिसन एंड आई विल केयर। गिव देम दिस कॉन्फिडेंस एंड इट्स प्रिवेंटेबल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल नहीं है, ये डिजीज़ है, कैंसर की तरह कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। फॉरगेट अबाउट इट। इन टुडेज वर्ल्ड दिस इज प्रिवेंटेबल. We have lots and lots of measures which anyone can take with the help of counselors. Lots and lots of ways. It is only the person has to recognize and they should approach to the counselor. एक स्टोरी थी, 2 बच्चे थे, बहुत अच्छे आपस में फ्रेंड्स थे। दे सेड कि बहुत खेलते थे एंड बहुत गांव वाले उसको बहुत डांटते थे दोनों को, पूरा दिन खेलते रहते हो, कुछ पढ़ते नहीं हो, कोई काम नहीं करते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस कंटिन्यूसली होते थे। तो एक दिन वो सुबह से खेलते खेलते गांव के थोड़ा सा दूर चले गए, बाहर चले गए। वहाँ पर एक कुआं था।
बहुत खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चा नीचे गिर गया। अभी दूसरा बच्चा था, ही वॉज वेरी थिन, बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी उसमें। उसने बहुत शोर मचाया कि कोई तो बचा लो, पर नोबडी केम एज अ विलेजर, कोई नहीं था क्योंकि सब बहुत दूर थे और उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। उसने सडनली अपना दिमाग लगाया, बराबर में बकेट थी, एक रस्सी रखी थी, फटाफट बांधा, नीचे डाला, उस बच्चे को उसमें डाला, एंड समहाउ खींचने में बहुत प्रॉब्लम हुई उसको। कभी हाथ में से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा, पैर में प्रॉब्लम हो गई, बट स्टिल ही सेज नो, ही इज माई फ्रेंड, आई हैव टू हेल्प हिम आउट। खींच कर उसको बाहर निकाला, एंड उसके बाद वो गांव आए। गांव में आके उन्होंने सबको स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे किया, उसने मुझे बचाया। जैसे हम करते हैं ना, कुछ अच्छा काम करते हैं तो देन वी शेयर आवर हैप्पीनेस विद अदर्स, सो दे आल्सो शेयर देयर हैप्पीनेस विद अदर्स। अभी गांव वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। दे सेड ये तो कर ही नहीं सकता, ही कांट डू इट, ही इज सो लीन एंड थिन, एंड इसमें तो ताकत कहाँ से आई है। तो ही वाज शोइंग हिज ब्रूजेस हैंड में सब जगह, बट दे सेड नो, ये तो कर ही नहीं सकता है बिल्कुल। गांव में एक बुजुर्ग थे, वो ये सब सुन रहे थे। ही सेड वो कर सकता है। सबने बोला आप चचा ऐसे कैसे बोल रहे हो, कैसे कर सकता है वो। ही सेड नहीं, उसने किया है, ये मुझे विश्वास है। मुझे इसलिए विश्वास है उसने किया है क्योंकि वहाँ कोई भी नेगेटिव बोलने वाला नहीं था, कोई भी उसको डाउन करने वाला नहीं था। ये इसने अपनी विल पावर, इनर स्ट्रेंथ से उसको बाहर निकाला है। तो वो एक फ्रेंड, पतला दुबला फ्रेंड अगर ऐसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते किसी के लिए ये सारे काम। हमारे अंदर है कि हम उसको थेरेपी दे सकते हैं। बात करके, बात करना इज हाफ ऑफ द थिंग्स ऑफ योर माइंड गोज। आपने देखा होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है तब तो आप मतलब बातें ही करते हैं, आधे बातों में ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। अगर वो डॉक्टर खाली प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और पूछता है आपके साइंस एंड आपको जाने देते हैं, तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं, वो डॉक्टर ने ठीक से नहीं देखा। आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा। तो हमें भी वही करना है, हमें वो कॉन्फिडेंस देना है उस पर्सन को, जो भी पर्सन इससे डील कर रहे हैं। देन आई विल सजेस्ट फ्यू थिंग्स टू प्रिवेंट इट। नंबर 1, मीट योर सेल्फ वेयर यू आर। आप कहाँ पर हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एवरी डे विद दिस डिसऑर्डर इज डिफरेंट। आज मूड स्विंग आपका कुछ है, कल मूड स्विंग कुछ होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली नाउअडेज एंड एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं है कि हमें ये हो ही नहीं सकता है, किसी को भी हो सकता है, पर एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। द की टू सेल्फ ट्रीटमेंट इज टू बी ओपन, to be loving towards yourself, and what you're going through you should be very aware of it. Say every day to yourself, I am worthy to this world, I am going to rock today, and you are bound to have a very good way. Yes, I am open to any questions, anything coming into your mind, just send here and I will be answering it. My next suggestion is exercise to pump you up. कहते हैं ना, हमारी नसें और सब कुछ खुलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट दीज काइंड ऑफ थॉट्स वर लेस लाइकली टू दोज पीपल्स हु डू 30 minutes ऑफ वॉक थ्राइस अ वीक। कोई ज़रूरी नहीं है आपको डेली वॉक करना है या आज जाना ही जाना है। आजकल कोरोना वायरस टाइम है, सो समवेयर सम पीपल माइट बी फीलिंग कि बाहर जाने से कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा घर में भी वॉक करने की कोशिश करिए, जो भी जगह आपके पास अवेलेबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉक। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने बोला था कि अगर रिसर्च किया था, उसमें था अगर आप साइकिलिंग करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन एनफ, बट डू इट रेगुलरली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज किया, नेक्स्ट 1 महीना छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। इट विल ओपन ऑल योर पोर्स एंड गिव यू अ वेरी पॉजिटिव, आप जब अपना खून पसीना, कहते हैं ना पसीने की कमाई है, जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ में तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है अच्छा। देन योग करिए। योग हमें हमारी आत्मा से मिलाता है। हमारे भारत में हमारी जो संस्कृति है उसमें योग है, उसको ज़रूर करिए। बाबा रामदेव है, बहुत सारे ऐसे और भी अदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली यू विल फील रिजुविनेटेड, यू विल फील फ्रेश अर्ली मॉर्निंग। सो कीप डूइंग ऑल दीज योगा। एंड मिस्टर रावत तो सबसे बड़ा योगा करा रहे हैं आजकल सबको, विच इज़ लाफिंग योगा। So I am very grateful to him that he is giving this laughter yoga therapy to all the people in the whole society.
Thank you so much, Dr. Rawat, for being there for the society. Then, you know what yoga does it? It gives you flexibility. It align your spine, improves mental ability, rejuvenate yourself, then promote relaxation and emotional wellness. So keep doing this. एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने भी बताया था कि योगा करने से हम एक एलिमेंट को ठीक नहीं करते हैं, हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देते हैं. हमारे उसमें कहा गया है कि कोई भी जैसे रेकी करते हैं ना, कहते हैं हमारे पॉइंट्स होते हैं रेकी के, सो दोज चक्रास, वी कीप क्लीनिंग आवर चक्रास ऑल्सो इन दिस. देन योगा करने से बहुत सारी हम हमारी सारी नसें, सारा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को जाता है, तो थॉट्स भी हमारे हैप्पी वाले थॉट्स आते हैं, वी फील फ्रेश. So keep on doing this. Then you have a diet and food, which is very important in this. Diet and food means आप अगर eating lot of sugary food is also very harmful. आप खाइए because it's a requirement of your body, but excess of everything is bad. शुगर के लिए कहा गया है कि थोड़ी स्लो पॉइजन है कुछ लोगों के लिए. सो इसमें 2019 में एक स्टडी हुआ था विच सजेस्ट दैट अ डाइट दैट इंक्लूड्स मेनी ऑफ शुगरी और दिस काइंड ऑफ फूड कुड इफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल. जो ऑलरेडी इन चीज़ों में है उनके लिए तो है ही नुकसान, बट जो यंग पीपल है उनको लेथार्जी फीलिंग भी आती है आजकल बिकॉज एक्सरसाइज कम करते हैं. इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इस टाइप के फूड कम रखिए अपनी डाइट में. फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन चीज़ों को बढ़ाइए. हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है वी हैव सात्विक, तामसिक और राजसिक फूड. अगर किसी को पता होगा तो दीज 3 टाइप ऑफ फूड्स वी आर हैविंग. देन सात्विक इज वी हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड नट्स. तामसिक इज शुगरी फैटी फूड्स. जो राजसिक, जो राजा लोग खाते थे, स्पाइसी फूड, राइट. सो इन सब का एक बैलेंस बना के लेना है. ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ना है, कुछ नहीं खाना है, एक बैलेंस डाइट बना कर लेना है. आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं. देन आप ये याद रखिए, यू आर यूनिक. You may not think the world needs you, but it does. For you, you are unique. आपकी तरह कोई बोल नहीं सकता, आपकी तरह कोई चल नहीं सकता, आपकी तरह कोई बातें नहीं कर सकता. आप एक ही हो इस दुनिया में. So feel that uniqueness in you. You are amazing. If you are having a dull day, have it. Doesn't matter. थोड़ा सा भी डल फील करते हैं, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let yourself feel the emotions. बट डोंट स्टे देयर. कोई नहीं डल आ गई, फीलिंग आ गई. किसी ने सही कहा था, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है. आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है. कई बार ऐसा होता है, हमारी हो सकता है आप किसी कॉरपोरेट फर्म में वर्क करते हो, आप में से कुछ, तो उनमें हमारा बॉस से नहीं बनी, हमारे सराउंडिंग्स में से किसी से नहीं बन रही है, घर में लड़ाई हो गई किसी बात पर, फ्रेंड्स से लड़ाई हो गई. सो दीज आर छोटी छोटी सी चीज़ें, दीज आर नॉट बिग थिंग. बहुत छोटे छोटे हो गई तो हो गई, कोई नहीं, लेट इट गो, मूव ऑन. उसको पकड़ के नहीं बैठना है. अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए. कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में आने की. उस रिलेटिव ने, उसने ऐसे कह दिया बिकॉज मेरे को कैसे कहा उसने, उस रिलेटिव ने इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे. फॉरगेट इट. दिस वर्ड इज़ ब्यूटिफुल. इतना ब्यूटीफुल है कि आप जब सोचना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, नॉलेज लेना शुरू करेंगे, तो ये बातें तो बहुत छोटी लगेंगी. दीज आर नथिंग इन योर वर्ल्ड. आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं व्हेन यू गेट मोर नॉलेज. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. येस, वेरी ट्रू. मिस्टर गुप्ता set goals that stretch the intellect. Very true. I'll talk about it little later. Now know that today isn't indicative of tomorrow. आज आपके साथ जो हुआ है, आप अपनी पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए. क्या सेम डे दूसरे दिन भी रहा है? क्या सेम इमोशंस, सेम चीज़ें दूसरे दिन हुई हैं? नहीं. इवन आप खाना भी अलग अलग तरीके का बनाते हैं, सेम चीज़ नहीं बनाते हैं दूसरा दिन. सो फिर हमारी चीज़ें अलग अलग टाइप से होती हैं. उसको ये नहीं सोचना है कि आज अगर डल है तो कल भी डल होगा. थिंक पॉजिटिव. नहीं, कल इट विल बी बेटर देन टुडे. Now Albert Einstein has also said that learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, but most important is to move on. Don't stop moving on. Yes, Dr. Rawat is asking how to balance work and life. Very true. It is, आजकल I think we all are multitaskers.
some housewife are working outside also, some people are there who are taking 4-5 jobs all together. So इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक सेट गोल चाहिए, सेट रूटीन चाहिए, विच आई विल टॉक इन माई नेक्स्ट कमिंग 2-3 points. We were that know that today isn't indicative and not the indication of tomorrow. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और आगे बढ़ना है. बी पॉजिटिव, चेंज योर डीपी. आई ऑलवेज से दिस, डी इज डिस्प्ले, पी फॉर पॉजिटिविटी. डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे बात करें. आपकी प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएंगी, पर लोगों का भी आपकी तरफ जो आउटलुक होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए. आप स्टेटस चेंज करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक पे स्टोरी शेयर करते हैं, सब लोग अपना अपना करते हैं. हैव यू एवर रियलाइज, क्या आपने किसी सोल्जर का शेयर किया है? क्या आपने किसी ऐसे फ्रेंड का जिसने आपको मोटिवेट किया हो उसका शेयर किया है? कभी दूसरों के लिए कुछ शेयर करके देखिए और अपनी डीपी को पॉजिटिव रखिए. पॉजिटिव एटीट्यूड इज हाफ वर्क डन. आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है. सो थिंक पॉजिटिव एंड चेंज योर डीपी. नाउ सेट अटेनेबल गोल्स. This I am coming on Dr. Rawat. This point is for this, आपका how to balance work and life. कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे कामों की एक लिस्ट बना के वो पाइल अप कर लेते हैं. ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये पूरी लाइन हमारी रेडी हो जाती है उसकी. लेकिन हम क्या करते हैं, शायद एक भी काम नहीं कर पाते हैं. आप अपने जितने भी गोल हैं उसको rather than having a long to do list, ब्रेक करिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करिए, छोटे छोटे उसमें लीजिए इसको. सम स्पेसिफिक, मेजरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनको करिए. अचीवेबल, जिसको छोटे छोटे काम करने से आपको खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए. आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा गोल अगर आप रखते हैं कि आज मुझे ऑलमोस्ट 15 वर्क करने हैं और करने ही करने हैं, डोंट डू दैट. उसको भी ब्रेक कर सकते हैं आप कि जितना होता जाएगा मेरे कैलिबर के अकॉर्डिंग उतना हम करेंगे. उससे आगे करने के लिए पूरा दिन है हमारे पास, जितनी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. अपने को स्ट्रेस में मत रखिए कि करना है. यस, कभी वर्क प्लेस में ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस आता है वर्क प्लेस का. हमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, यू हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट 2 days. सो यू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट. उसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप उसको आराम से कर लेंगे. कभी कभी ऐसा होता है, मोबाइल में हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा कि यूजलेस होती हैं. किसी में लाइट कम आ रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं आई है, सो सब हम रखे रहते हैं मोबाइल में. उससे क्या होता है, मोबाइल हैंग हो जाता है. होता है आप लोगों का, सबका होता होगा. देन यू कीप ऑन क्लीनिंग आप ऐसे नहीं करते कि आपने स्पेस क्लीन अप दबाया और हो गया. नो, स्पेस क्लीन अप ऑल्सो आस्क यू टू हैव द क्लीनिंग सिस्टम. ओनली यू कैन डू दैट. सो आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, उसको क्लीन करेंगे. आप कहीं और गैलरी में जाएंगे, फोटो गैलरी, उसको क्लीन करेंगे. आप ग्रुप्स में जाएंगे, आप उसको क्लीन. वन वर्क एट अ टाइम यू आर डूइंग. सेम वे यू हैव टू डील इट विद योर वर्क रूटीन ऑल्सो. अपने जितने भी काम है उनको छोटा छोटा टारगेट लेके ख़त्म करते जाइए. ये नहीं आज आपने काम नहीं किए तो कल उसके ऊपर आ गए, तो कल में आज वाले भी काम आ गए और कल वाले भी आ गए. सो छोटे छोटे टारगेट्स रख के उनको कंप्लीट करिए. आप देखिए अंदर से कितनी खुशी मिलेगी आपको. एंड देन जब आपको खुशी मिलती है, आप कोई काम करते हैं, कोई गोल आपका फिनिश हो जाता है, देन यू नो व्हाट हैपेंस, रिवॉर्ड योरसेल्फ. ठीक है, आप खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने ये 2-3 काम थे, आई हैव फिनिश्ड इट. या कोई प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो गया तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं आप. या बहुत अच्छा कहीं खाना भी बहुत अच्छा बना लिया तो हाउसवाइफ भी हैप्पी हो जाती है कि आज तो हमने बहुत टेस्टी खाना बनाया था और मेरे पूरे घर ने बहुत मन से खाया. तो दीज आर यू नो छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमारी, इनको संभाल के रखिए. एंड एवरी सक्सेस इज़ अ सेलिब्रेशन. ज़रूरी नहीं केक ही काटा जाए, ज़रूरी नहीं हम आपस में मिलके इसको सेलिब्रेट करें. नहीं, आपको अपने लिए भी जीना है. आप अपनी हेड मसाज कराइए, कितना आराम मिलेगा. आप छोटा छोटा अपने हाथों में ही ऐसे ऐसे मसाज करेंगे, यू विल फील सो गुड, राइट. सो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए. एंड जस्ट कोई आपको एक्नॉलेज कर रहा है नहीं कर रहा है, पर यू हैव टू एक्नॉलेज योर सेल्फ कि मैंने ये गोल थे, इनको ख़त्म किया एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन एंड हैप्पीनेस विल इंक्रीज. देयर इज़ वन मोर थिंग. अपने को रिलैक्स करने के लिए हमेशा उस इंसान से मिलिए जो बहुत खूबसूरत है, जो
बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है आपका, और उसको ही आपको मोटिवेट करना है. यू नो हु इज़ दैट स्टूडेंट, हु इज़ दैट पर्सन. वो खूबसूरत इंसान कौन है? वो खूबसूरत इंसान आप हैं. शीशे में अपने आप को देखिए, अपने से अपनी मुलाकात करवाइए. आप देखिए कितना आप रिजुविनेट हो जाते हैं कि ये मैं हूँ जो अपने पेरेंट्स के पास रहे थे, जिन्होंने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी थी. आई विल नॉट लेट देम पुट डाउन. I will do whatever I can do for my parents, my family, my society. I will be a strong citizen of India. So आप उस इंसान से 5 मिनट बात करिए सुबह. पूरे दिन में कभी भी आपको 5 मिनट मिलते हैं, ज़रूर बात करिए शीशे में देख के अपने आप से. कहते हैं ना, जब बहुत पहले आई एम इनटू एन एजुकेशन लाइन, सो आई स्टार्टेड माई करियर इन टीचिंग इन स्कूल्स. सो वहाँ पर जब डिबेट्स होती थी तो हम स्टूडेंट्स को कहते थे आप हमें तो सुना ही रहे हैं, लेकिन जब आप उसको शीशे के सामने खड़े होकर सुनाएंगे तो आपको अपने हाव भाव, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये सब चीज़ें वी विल लर्न फ्रॉम दैट. सेम वे इस खूबसूरत इंसान से जब आप मुलाकात करेंगे शीशे के सामने एवरी डे, जस्ट सी द मैजिक. इट्स मैजिकल एंड यू विल फील रिजुविनेटेड. यस, ये हम हैं. बिकॉज कई बार होता है हम बहुत काम करते हैं, थके हुए होते हैं, वी डोंट वांट टू सी आवर फेस इन द मिरर, बट यू मस्ट सी कि इज दिस मी? नो, आई एम मोर देन दिस. एंड जस्ट रिजुविनेट योर सेल्फ. देन यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू क्रिएट अ रूटीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से अ ड्रीम written with a date becomes a goal broken down with a date becomes a plan backed by action becomes a reality. वर्क ऑन अ रूटीन. एक डायरी मेंटेन करिए. अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, आप कहीं स्टूडेंट हैं, आप यूथ कहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत बिजी भी चल रहे हैं, ये करना है वो करना है, ऑलवेज मेंटेन अ डायरी. डायरी मीन्स यू आर राइटिंग योर माइंड इन टू डायरी. येस, दीज थिंग्स आई हैव टू डू. टू डू लिस्ट आप जब अपनी बनाते हैं, उस टू डू लिस्ट आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देती है. जब आप उसको दोबारा देखेंगे, अच्छा ये काम मैंने कर लिया है, एक ऑर्गेनाइज वे में आपकी लाइफ को हैंडल कर देती है, जिससे स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन से सिम्टम्स भी नहीं आते, क्योंकि आपका काम होता जा रहा है. यू आर गेटिंग दैट हैप्पीनेस, यू आर गेटिंग दैट रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ कि वी आर डूइंग दिस. सो दिस वे यू कैन ईजीली डू दैट. नाउ खुश रहिए. खुश रहने की तो कोई भी सीमा नहीं है. खुशियों के लिए हम क्यों करें किसी का इंतज़ार? आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार. चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं. अपने आसपास में इधर उधर सब चीज़ें ऐसा ऑरा फैलाइए कि लोग आपसे बात करने के लिए आगे आएँ, आपसे बात करें. अगर कभी आप लो फील कर रहे हैं, क्लोज योर आइज, ईयर प्लग्स ऑन, वॉल्यूम अप and ignore the word and enjoy. Just enjoy a lot. So then spend time with nature. This is my favorite, मेरा बहुत दिल के करीब है नेचर के बारे में बात करना, पर यहाँ पर हमें टाइम लिमिट है तो मैं थोड़ी बात करूँगी उसके बारे में. आपने कभी आसमान देखा है? आजकल कितना सुंदर ब्यूटीफुल स्काई है. बादल अपने पैटर्न्स चेंज करते हैं, कभी छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, कभी बड़े बड़े पैचेस में आते हैं, कभी पूरा नीला हो जाता है आसमान, कभी पूरा वाइट हो जाता है. इट्स सो ब्यूटीफुल. यू नो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस? रेजिलियंस, लचीलापन. अकॉर्डिंग टू द वेदर इट इज चेंजिंग, pollution is less, nature is so beautiful, we should be resilient to this, you know. कोई भी फीलिंग है, आप कहीं भी आपको सनलाइट मिलती है, सनलाइट इज़ वेरी गुड फॉर यू. अगर आप कहीं भी लेते हैं, छत पर जाइए, अपने कॉरिडोर में, कहीं भी जहाँ आती है, विटामिन डी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है. इट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग अ नेगेटिव मूड. देन कंसीडर टेकिंग अ वॉक. कभी लंच के बाद थोड़ा सा वॉक ज़रूर करिए, अदरवाइज यू विल फील हैवी. हैवीनेस मीन्स आप अनकम्फर्टेबल होंगे, दैट वॉन्ट वर्क. Then these activities will help you to reconnect with nature. Have a nap if required. Little bit, थोड़ा सा nap लेना is not a bad idea for these people who are suffering from it. It will rejuvenate you. Now spend some time with your loved ones.
It's very important. Face to face time is an excellent option, but nowadays when you can't go to your parents, you cannot go to your relatives or somebody, so connect them on various technological platforms like बहुत सारे apps हैं जिनसे आप connect कर सकते हैं. Parties आप आजकल लोग virtual parties कर रहे हैं, वर्चुअल बातें कर रहे हैं. आपके बहुत सारे आई एम कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ ओल्ड एज होम्स ऑल्सो, लॉट्स ऑफ NGOs. आई can't go out and meet them because it's risky for them, me, both. So what I do is I am doing all virtual talks with them to detoxifying them, because aged लोगों के लिए it's a problem to being at home. थोड़ा बहुत तो उनको आपको एंटरटेन करना है. आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए. भगवान ने तो टाइम दिया है हम लोग को इतना अच्छा कोविड-19 का कि सब साथ में हैं, नहीं तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे. दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं. अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा. ट्राई समथिंग न्यू एंटायरली. when you do something every day, so बहुत डलनेस ही आ जाती है. कुछ भी आप नया ट्राई करिए जिसमें आप अपनी क्या बोलते हैं बहुत सारी पेंटिंग्स कर सकते हैं. आप कुछ आपकी हॉबी जो रह गई होती है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक हैप्पी मोमेंट्स देती हैं. हैप्पी क्वेश्चन कम्स विद यू. ज़रूरी नहीं कि सेम रूटीन को फॉलो करें. कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर 24 आवर्स को हमें यूज़ करना है. हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लीडर्स हैं उनके पास दे हैड ओनली 24 आवर्स. वेदर इट इज़ सक्सेसफुल पीपल लाइक बिल गेट्स, हमारे PM ले लीजिए, टेक द प्रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, और एनी वन हु इज़ वेरी बिजी, दे ऑल हैव 24 आवर्स, बट दे नो हाउ टू मेक दिस 24 आवर्स एंड टर्न इनटू 48 आवर्स. So you have to take out time for yourself and your loved ones. Volunteering can be also a great way to do this. आप ऑर्फनेज में भी विजिट कर सकते हैं, बाहर से विजिट कर सकते हैं. इट विल गिव यू हैप्पीनेस. ओल्ड एज होम. Then we have centers here for mental disorders. Those people who are keen to help these people, you can just call these centers and help them out by talking also. They train you too. I will share many numbers later on. Then these जो हमारी घर में हाउस हेल्प भी होते हैं, आजकल कुछ लोगों ने अलाउ किया है, कहीं कहीं अलाउड नहीं है. उनसे अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, जस्ट हेल्प देम आउट to know the policies which government is offering them. I remember जब ये शुरू हुआ था तो PM ने बोला था 500 रुपीज़ सबके अकाउंट में जाएंगे, those who are having ration card and all. So हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की. They didn't know about it because किसी के पास TV नहीं है, किसी के पास कोई ज़रिया नहीं है इन चीज़ों को बात करने का. माउथ टू माउथ जाती हैं ये चीज़ें उनके पास. So हमने बहुत लोगों को एजुकेट किया है. We have a power, we are learned people, so we can communicate with them. किसी भी तरह से उनकी हेल्प करिए इन चीज़ों को समझने में. बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स क्या हैं उसके बारे में उनको बताइए. कभी अब उनके बच्चों के बारे में पूछिए, देखिए आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा. आप एक कॉपी या कोई ड्राइंग बुक या कुछ ऐसा उनको गिफ्ट करिए. हाउ ब्यूटिफुल यू विल फील विद इन इनसाइड. So volunteer all these works. Just see how you can donate things or help them out in just going out of the way. Gratitude, do you know? It's a wonderful way to feel happy. It shields you from negativity, makes you at least 25% happier than what you were. So it eliminates stress and heals, improves sleep. Lot many things can be done by gratitude. ये यकीन मानिए ये एक ऐसा इत्र है जिसको आप जितना छिड़केंगे उतना ही आप खुद महकते हैं. So keep involve gratitude in your life. Research also shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. Just शुक्रिया करिए उन लोगों का जो आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत मजबूत बनाया है. शुक्रिया करिए उन लोगों का जो बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल बड़ा किया है. शुक्रिया करिए उन लोगों का जो बहुत आपके लिए परेशान हुए हैं और आपका अभी भी बहुत ख्याल रखते हैं. शुक्रिया उन लोगों का करिए जिन्होंने आपको आज तक जो आप हैं उनकी वजह से हैं. और सबसे पहले उस रब का शुक्रिया अदा करिए जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं और जिनकी वजह से आप यहाँ कंटिन्यू.
incorporate meditation also. You know, prayer is when you talk to God. Meditation is when you listen to God. This is the difference between prayer and meditation. Keep meditating. That is, it's a way to relax yourself. You know, mindfulness practices, including meditation, all these things are magical. We feel so fresh after doing all these things. If you are up for exercise, consider normal walk. In case if you want to, जैसे कभी कभी होते हैं ना, हमारा मन नहीं करता है आज हम ये नहीं करेंगे, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हमने ये वाले काम हम नहीं करेंगे. सो जब आपका मन ऐसा करता है, जस्ट डू अ पेप अप टॉक. अपने से बात करिए, बोलिए आई कैन डू इट, गेट आउट ऑफ द बेड एंड गो फॉर अ वॉक. लेथार्जिक नहीं फील करना है. लेथार्जी फीलिंग आती है कभी कभी, पर ये हमारे ऊपर है कि हम उस लेथार्जिक फीलिंग को कैसे हटा सकते हैं. ये सिर्फ हम ही अपने आप को पुल अप कर सकते हैं इनर स्ट्रेंथ से. You can do it and just have a leisure walk. You know, while we are panicking about COVID-19 times, Mother Earth is healing. You must have seen the bountiful nature which is everywhere. Enjoy chirping birds. Different type of migratory birds are coming in this season. Enjoy each and everything. Walk around your block. अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, नीचे वॉक करके आइए, देखिए कितना सुंदर हो गई है प्रकृति हमारी. Start with 5 minutes walk. It will make you more energetic. Then धीरे धीरे इसको बढ़ा के 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. You can just enhance your metabolism by walking. It may also help prevent future depressive episodes too. So enhance yourself. Now my next point is getting enough sleep can also have a noticeable effect. Yes, Mr. Gupta, cherish those who hold you up. Absolutely, absolutely. You are correct. So you may not sleep well, you may sleep too much. Both can make symptoms worse. आप देखिए, पहले हमारे पुराने ज़माने में भी, और एक बहुत जिसको बोलते हैं अच्छी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. कुछ सोच के ये चीज़ें बनी गई है. पुराने टाइम में भी जो किंग लोग थे, जो राजा लोग थे, वो भी अपनी प्रजा को सब सुबह उठते थे, सुबह उठ के एक्सरसाइज करवाते थे मॉर्निंग में. और आर्मी में भी आपने, या कहीं हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, सब जगह आपने देखा होगा, लोग सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी से करते हैं. सो टाइम से सोइए, टाइम से उठिए. गेटिंग एनफ स्लीप, 8 hours sleep is more than enough for all of you. Aim for this. Now sometimes कभी कभी हमें मोटिवेशन मिलता है जब लोग हमें बताते हैं. We are motivated, we are okay, but sometimes we get the motivation from the people who make us realize it. So watch motivational videos. IPL आता है, आपने सबने देखा होगा, या कहीं कुछ होता है तो then you must have seen that cheerleaders are there. Why do we keep that? Because they motivate you to play more. अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलिए. तो वी रिक्वायर मोटिवेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल वर्ड्स टू पेप यू अप. कीप वॉचिंग इट. गूगल का टाइम है, सो यू कैन वॉच ऑल दीज थिंग्स. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इफ नथिंग वर्क्स, कुछ भी आपका काम नहीं कर रहा है, देन व्हाट यू शुड डू इट, कंसीडर फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट. अ पर्सन मे रिफ्यूज टू गो. A person may say कि I will not go, I am not having this system at all. But it is your duty to convince that person कि let's go, talk to them and we'll come back. We'll not tell, because all the counselors, everybody keeps it very secretive, all your talks. So just be confident and approach them. It is not a disease. It's it can be prevented by talking to your counselor also. They will tell you according to your problem कि how much things do they need. Just a second. Yeah, just a second. Then afterward हमें वो भी देखना है कि जो लोग, जिनके घर में जिन्होंने सुसाइड किया है, उनसे हमें बातें करनी चाहिए कि क्या क्या स्ट्रगल्स उनकी थी, कैसे उन्होंने उसको कोप अप किया है. दोज हु आर सर्वाइवर ऑल्सो ऑफ दिस, उनसे भी हमें बातें करनी है. इन चीज़ों को सबको आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे. देन पीपल हु सफर्ड फ्रॉम सुसाइडल अटैक्स,
there are some in our Indian community also, all over the world also, but here I will talk to you about all these famous people which you already know. They came out as victorious. Number one is Deepika Padukone. You must have heard about it. She went into depression for so long, for 3 and 4 months she went into depression. So how she has mentioned in one of the interview, I felt a strange emptiness in my stomach, though it was stress. So I tried to distract myself from focusing on work, and I surrounded myself with people who used to pep me up. I took a break from work, and then nagging feeling went off immediately. Then actress Ileana D'Souza, what she suggests to all these people, because she herself also suffered for it. I think it's important for everybody to get themselves checked. Mental health is something that's very important. So we have people in our society for this. Then A.R. Rahman, what he says, we all know he is such a beautiful, you feel like listening to him. But अपनी एक book में उन्होंने बताया था, he says that I live from day to day now after dealing with depression. I believe that everything will be taken care of. During an interview he said, I have tried to develop a balance over the years, whether people praise my work or rip it apart. I trust the possibility that after few months they will like me. So he doesn't hold up himself. एक ही जगह नहीं रखा उन्होंने अपने आप को. They kept on moving ahead. अपना काम करते रहे. हमारी गीता में भी कहा गया है, कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना. अपने कर्म करते रहने चाहिए हम लोगों को, कभी भी रुकना नहीं है. हो सकता है लोग जब आप कुछ अच्छा करते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ जेलसी भी फील करते हैं. इन सब चीज़ों को डोंट टेक इट बाय हार्ट. जस्ट मूव ऑन इनटू योर डायरेक्शन, वट एवर डायरेक्शन यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ. Then we have Manoj Bajpayee. Manoj Bajpayee is a very finest actor, we all know. His aim and his dream was to come in NSD, National School of Drama. What happened was, वहाँ पर उनका selection नहीं हुआ. So he went into depression for some time. He says, I was totally devastated. I never came across as close to committing suicide. बहुत बार मेरे mind में ये चीज़ें दिमाग में आई थी. But he says, my friends pulled me up. उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. And he quotes that 5 of them used to sleep next to me and would never leave me alone. My friends supported me throughout my journey. And we all know that he is a recipient of National Film Awards and 4 Filmfare Awards. Same way, if we go internationally, then Lady Gaga, Abraham Lincoln, he was also, he also suffered from these kind of thoughts. So it is not कि आप कोई successful person है या आप unsuccessful है, किसी को नहीं हो सकता. It can happen to anybody. It is just how we are dealing with it at perfect time. That is more important. Now, for all the youths who are there, I would suggest some books that you must go through with these books. It's very helpful for all of you. Number 1 is Depression, A Teen's Guide to Survive and Thrive by Toner. It is a strategy-based approach to deal with depressed moods, thoughts and feelings. Then we have Choosing to Live, How to Defeat Suicide Through Cognitive Therapy by Thomas Elias. This is also a very nice book. I myself have read it, and it gives you lots of ways to cope up with it. Then for parents whose children are dealing with this, or who know somebody in your family, I will suggest 2 books for the parents to read. One is The Truth About Suicide by Facts on File in a straightforward and non-judgmental method. It is a series of tackle of range of current issues that affects the teen. I'll again take the name. It is The Truth About Suicide. The next is Warning Signs, a parenting guide for discovering if your teen is at risk for depression or addiction or suicide by Judy Davis. This book is also very informative. हमारा maximum youth है वो डील कर रहा है आजकल, टीचर्स डील कर रहे हैं उनको वर्चुअली उनकी क्लासेस लेके. फॉर दैट यू हैव व्हाट यूथ सुसाइड, व्हाट द एजुकेटर शुड नो बाय एलिनोर
ये टीचर के लिए बुक है, अगर आप में से कोई टीचर है तो यू कैन गो थ्रू विद दिस बुक. देन वी हैव यूथ एट रिस्क प्रिवेंशन sources, counselor, teachers and parents. So these are the books which are there. Now I am going to share some of the numbers, helpline numbers with all of you, so that you can easily go and approach them. Number 1 is National Hotline provide free confidential assistance from trained professionals 24 hours a day. National Hotline, you can see on Google. They may benefit anyone with depression who wants the need to talk about their feelings. Suicide Prevention of India Foundation is working hard to help people by organizing workshops. आपको भी ट्रेन करते हैं. In case you want to come into this field, they will train you also. And suicide attempt gatekeeper training they give. You know what is gatekeeper training? ये 2 hours की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है. आपको दिया जाता है कि आप लोगों से बात करिए, आप लोगों को काउंसिल करिए, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है टू डील विद दिस. You can also visit our website www.spif.in. This website also helps you out in many ways. Just go through with this website. Then we have एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था, वेलोर में हुआ था. इन वेलोर व्हाट हैपेंड, दे डिड काउंसलिंग डोर टू डोर, होम टू होप. उन्होंने इंडिविजुअली काउंसिल किया था लोगों को, वेदर दे आर इन डिप्रेशन और नॉट, बट दे इंडिविजुअली काउंसिल्ड ऑल ऑफ देम. So that was very helpful. We can try this in our society wherever you are living. Then you can, if you are meeting with a person with these kind of symptoms, you can contact or call iCall TISS. I am giving you the number. It is 91529 87824. Right. Then next is you can contact ASRA. ASRA is also one of the organization who deals with mental illness issues. Its number is 022 2754 6669. Then we have Sneha India, that is 044 2464 0050. Then we have Vendra Vela Foundation, that is in South, and it's coming up very nicely, helping lots of NGOs also in this regard. Its number is 730-4599 836. Then we have 730-4599 837. Then we have 1860-266-2345. I will share all these numbers with Dr. Rawat also, so that they can guide you in this manner better. And if you are feeling some issues, you can contact me through him. He will give you my number. Then we have some more organizations regarding this. National Suicide Prevention Lifeline. This lifeline is, the number is 1800-273-8255. To speak to someone is from National Network of Local Crisis Center. आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर इनकी ब्रांचेस होती हैं. Then we have Lifeline Chat. This is an online chat service of the National Suicide Prevention Lifeline. In this field, what I believe is this Lifeline Chat online service is also very nice. All of you can take these numbers from Dr. Rawat. I will share with him separately. In this field, what I feel is we need more voices to help. As a counselor and as a motivational and public speaker, and I am associated with all of our world organizations here. So I feel in India we need more therapists in this field. Encourage children to come in this field. You know, we require, generally what happens is we require 1 lakh लोगों के बीच में हमें 10 थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. And you know, in India how many therapists we are having? Only 1 in 1 lakh. So we need a movement to go with this. हमें बहुत ज़रूरत है कि लोग सामने आए इस चीज़ में अपने आप को एजुकेट करें. मोर साइकोलॉजिस्ट वी नीड. सो एनकरेज चिल्ड्रन टू कम इन टू दिस फील्ड. देन वी हैव, यू नो, वी शुड हैव मोर ऑनलाइन मीटिंग्स. द वे अभी डॉक्टर रावत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, एंड ही शुड कीप ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क्स इन फ्यूचर ऑल्सो.
we need more online meetings the way we are organizing now, so that people are beneficial out of it, the society is beneficial out of it. Then we need more mental warriors. अगर आपके यूथ आप हो और आप में वो ताकत है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, so please come forward and help the society. And we will train you. We have trainers everywhere. You might be knowing there are so many organizations who can help you out in this manner. Then have positive conversations with people. कभी भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, चाहे आपका बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा भी है. डोंट डू दिस, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस. नो, जस्ट से बेटा अगर आप ये करोगे तो इस तरह से आप हर्ट हो जाओगे. डोंट डू दिस इज व्हाट नॉट इज कमिंग, right? So in some way not is okay. It is, yes, we have to be little bit strict sometime, but negative conversations continuously you just can't do, because they are children. क्या चीज़ कब हिट करती है बच्चों को, वी नेवर नो. इवन बड़े में भी अगर हम कहीं फंसते हैं, हमारी टीचर कुछ बताती है, कुछ टीचर्स का समझ में अरे कोई चीज़ होती है, अचानक से कोई सॉल्यूशन मिल जाते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो कब क्या ट्रिगर करे किसी भी इंसान को, यू नेवर नो. बी वेरी केयरफुल. जस्ट हैव पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस विद रेस्ट ऑफ एवरीवन. देन प्रिवेंशन ऑफ सुइसाइड इज़ अ जॉब फॉर ऑल ऑफ अस. आज मैं यहाँ पर हूँ, डॉक्टर रावत इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब. यू ऑल्सो कम अप एंड टेक चार्ज ऑफ इट. It is a responsibility as a good citizen of India for everyone. Then pep them up. Send these numbers, whatever I will share with Dr. Rawat, you can take it and share these numbers to reach to maximum people in society. Talk to these kind of, problems with everyone. So that, people आजकल aware ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि these kind of organizations also exist. They just know psychologists, psychiatrists and therapists. They don't know that we have organizations who are working day and night to give us comfort in this line, in this field. So just go and talk, approach these organizations, and I hope I am able to give you more information regarding this. And anybody, I am open for any question. If you want to ask any question, you can ask, and I am open for the questionnaire and counsel you people. If you want a secretive counsel with me, then also you can approach to Dr. Rawat. I will share my number with him. You can contact with me anytime. I am always there for the society. Thank you, Dr. Rawat. Thank you, Kiran. Thank you, Mr. Gupta, all those who attended my session. A big thank you to all of them. I will end up this session with few lines of Mr. Atal Bihari Vajpayee. बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों को हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. Thanks for joining my session. Keep laughing with Dr. Rawat and spread positivity around. Just be happy. You are wonderful. You are unique. One of its kind on earth. Enjoy this life each and every second. And have a nice laugh at the end. Thank you so much.